اپنے مرشد سے والہانہ محبت کا اظہار لوگ اب شادیوں میں ان کا ماسک پہن کر کرتے ہیں۔ یہ وہ ایکسٹریم شہرت ہے جس سے عمران خان کے مخالفین حد درجہ ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم، میں جمیل فاروقی ہوں۔ آپ میرا آفیشیل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ تمام تعریفیں ذات پاک کے لیے جو ہماری شہرت سے بھی قریب ہے اور ہماری ہر آنے جانے والی سانس کے بیچ میں ہونے والی معمولی سی جنبش کو بھی بخوبی جانتا ہے، اور تمام درود پاک نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ احمد متبع صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے اوپر، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جن کی وجہ سے ہم ہیں، جن کی وجہ سے یہ کل کائنات ہے۔ کپتان فرنٹ فٹ پر کھل کر کھیل رہے ہیں۔ کپتان نے اڈیالہ جیل کے اندر سے سکسر مار دیا ہے۔ کپتان نے کہہ دیا ہے کہ 30 مئی کو ان کا کورٹ میچ ہے اور دم ہے تو وہ میچ لائیو دکھایا جائے۔ یہ چوکے چھکے کپتان نے جیل کے اندر سے مارے ہیں۔ اس کی ڈیٹیلز کیا ہے وہ ڈیٹیلز شیئر کروں گا۔ شروع میں آپ نے ایک ویڈیو ملاحظہ کی، لوگ اب عمران خان کا ماسک پہن کر شادیوں اور تقریبات میں جانے لگ گئے۔ پبلک گیدرنگ سڑکوں کے اوپر زیادہ بڑی ہو سکے نہ ہو سکے، مجبوریاں اپنی جگہ پر، پاؤں میں گھنگرو مجبوریوں کے اپنی جگہ کے اوپر، لیکن نادن دھننا یہ پبلک کر رہی ہے اور اپنے سٹائل سے کر رہی ہے، اپنے انداز سے کر رہی ہے۔ وہ ویڈیو آپ نے شروع میں ملاحظہ کر لیا۔ اس کے علاوہ آج 2 بڑے فیصلے آ سکتے ہیں۔ پہلا فیصلہ عدت میں نکاح کیس اور دوسرا سائفر کیس۔ عدت میں نکاح کیس کی پروسیڈنگز جاری ہیں، سائفر کیس کی تھوڑی دیر میں شروع ہو جائے گی۔ جس وقت آپ یہ ولاگ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت وہ تمام تر ڈیٹیلز آ چکے ہوں گی، تو وہ ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس کے علاوہ رؤف حسن صاحب کے اوپر حملے کے 2 عدد نتائج نکلے ہیں۔ پہلا نتیجہ ہم نے دیکھ لیا کہ کس طرح حماد اظہر نے بغیر کسی ڈر اور خوف کے اسلام آباد سیکریٹریٹ میں اپنی پریزنس شو کی۔ دوسرا نتیجہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے رات گئے ایک پریس کانفرنس کر ڈالی۔ اس پریس کانفرنس کے اندر سے کیا نکل سکتا ہے، پی ٹی آئی کو مولانا صاحب کی کتنی ضرورت ہے، یہ تمام ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پہلے منٹ سے آخری منٹ تک دیکھنا ہے۔ ایک اور گزارش، اگر آپ نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن یعنی گھنٹی اپنے انگوٹھے انگلی یا ساتھ رکھے ڈنڈے سے دبا دیجئے گا۔ جب آپ سبسکرائب کرنے لگیں تو اوپر آل ویڈیوز کا آپشن سلیکٹ کیجئے تاکہ تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، اور کامنٹس نیچے میکسیمم کرنے ہیں تاکہ مبینہ فائر وال ہے وہ بریک ہو سکے اور آپ کے اور ہمارے درمیان جو رابطہ ہے یہ اور زیادہ شدت اور محبت کے ساتھ بڑھتا رہے۔ سب سے پہلے ٹاپ سٹوری عدت میں نکاح کیس کے حوالے سے اپڈیٹ شامل کرتے ہیں۔ یہ اب تک کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ جس وقت آپ یہ ولاگ دیکھ رہے ہوں گے ہو سکتا ہے اس میں کچھ اور بھی نکل کر سامنے آئے۔ وہ یہ کہ عدالت کا آج کے دن عدت نکاح کیس میں سزاؤں کے خلاف اپیلوں پر فیصلہ دینے کا اندیا۔ شاہ رخ ارجمن صاحب اس کیس کو دیکھ رہے ہیں۔ یہی وہ جج صاحب ہیں جن کے سامنے جب میرا کیس گیا تو انہوں نے اس کیس کو فارغ کر دیا تھا۔ آخری سماعت میں 1.5 سال کے بعد انہی کے پاس پہلے ہی دن انہوں نے فارغ کر دیا تھا۔ دوران عدت نکاح کیس کی سزا کے خلاف عمران خان اور بشرا بی بی کی اپیلیں۔ سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شاہ رخ ارجمن صاحب کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی وکیل عثمان ریاض گل عدالت کے سامنے پیش ہوئے۔ راجہ رضوان عباسی ایڈوکیٹ کے معاون وکیل عدالت کے سامنے پیش ہوئے۔ رضوان عباسی پھر نہیں آئے اس مرتبہ۔ رضوان عباسی صاحب نے دلائل دینے ہیں، ریکارڈ ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ معاون وکیل رضوان عباسی ایڈوکیٹ، آپ نے بھی تو دلائل دینے، اپنے فائنل کر لیں۔ جج کا عثمان ریاض گل سے اختصار، انہوں نے کہا کہ وکیل نے کہا کہ میں اپنے دلائل کے ہی 10 سے 15 منٹ لوں گا۔ عثمان ریاض گل، بلکہ عثمان ریاض گل نے کہا ہے، پی ٹی آئی کے وکیل ہیں۔ شاہ رخ ارجمن صاحب نے کہا کہ 1 بجے تک رضوان عباسی عدالت کے سامنے ہر حال میں اپنے دلائل دیں۔ 1 بجے تک وہ خود نہیں آ سکتے تو ویڈیو لنک کے ذریعے دلائل لازمی ہے۔ تو آج ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ اس فیصلہ جو اس کیس کا ہے عدت میں نکاح کیس کا وہ آ جائے گا، تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہو سکتا ہے، آج اس کا فیصلہ آ سکتا ہے۔ دوسرا، سائفر کیس کے اندر آج دلائل مکمل کرنے کا کہا گیا ہے۔ 1 دن کی مہلت جسٹس عامر فاروق صاحب نے اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے دی تھی پروسیکیوٹرز کو، اور آج جو ہے اس کے اندر مزید دلائل آگے آئیں گے۔ جس وقت شام والا آپ یہ ولاگ دیکھیں گے، ہو سکتا ہے جس وقت آپ یہ ولاگ دیکھ رہے ہو پروسیڈنگز چل رہی ہوں، شام والے ولاگ میں آپ کو 2 بڑی خبریں آج مل سکتی ہیں، پروبیبلٹی کے ساتھ کوسچن مارک مل سکتی ہیں۔ اب آ جاتے ہیں عمران خان صاحب کے اوپر۔ آج عمران خان صاحب نے جو گزشتہ شب صحافیوں سے ملاقات کی، رات میں تھوڑے بہت اس کے پوائنٹرز آئے، میں ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ عمران خان کی اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو، کیا کچھ کہا وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عمران خان نے کہا امریکہ کو اجازت ہے کہ وہ حکومت گرا دے، مجھے یہ اجازت نہیں کہ میں امریکہ کی سازش کو بے نقاب کروں۔ عمران خان، ججز اپنی ساکھ کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں، اس لیے انہیں لگ رہا ہے کہ ڈیل ہو گئی ہے۔ عمران خان کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو، انہوں نے کہا کہ کیونکہ ججز اب اپنے ساکھ کے لیے
अपने इंस्टीट्यूशन की बका के लिए खड़े हो गए हैं, तो अपोजिशन पार्टीज को लगता है कि मैंने शायद कोई डील कर लिया। इमरान खान कहते हैं कि 30 मई को सुप्रीम कोर्ट में मेरा मैच है। उन्होंने इसको मैच डिक्लेयर किया। इंसानों और जानवरों के मुआशरे में फर्क होता है। इंसानों का मुआशरा लोगों के दिल जीत कर चलाया जाता है। इमरान खान कहते हैं कि 8 फरवरी से पहले 3 सजाएं दी गई। तमाम प्रोपेगेंडे के बावजूद लोगों ने हमें जितवाया। उन्होंने समझा था कि हम इलेक्शन से भाग जाएंगे। इमरान खान ने यह कहा कि मीडिया का मुंह बंद करने के लिए फार्म 47 की वजीर आला ने हद तक इज्जत का कानून पास कराया। हद तक इज्जत का, मुल्क में खौफ के जरिए सब कुछ चलाया जा रहा है। पीटीआई को जलसे तक इजाजत नहीं दी जा रही। अब इमरान खान मजीद क्या कहते हैं, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं हमें पता है कि रऊफ हसन पर हमले के वाक़े के पीछे कौन है। उनको पता है कि इनसाइडर कौन है। रऊफ हसन के साथ जो कुछ हुआ उससे साबित होता है कि निजाम डंडे के जरिए चलाया जा रहा है, सिस्टम। इमरान खान मजीद कहते हैं पार्टी तैयार हो जाए, रऊफ हसन के मामले पर सड़कों पर निकलेंगे। हमारी बर्दाश्त खत्म हो गई है, एनफ इज एनफ, यह इमरान खान ने कहा। और हम सड़कों पर एहतजाज करेंगे। मुल्क की हालात की वजह से सड़कों पर नहीं निकल रहे थे। इमरान खान ने यह भी कहा कि मईशत इस काबिल नहीं कि एहतजाज बर्दाश्त कर सके। कोई भी नुकसान हुआ तो ये खुद जिम्मेदार होंगे। पार्टी तैयार रहे, हम असेंबली और बजट इजलास भी नहीं चलने देंगे। तो अब खान साहब ने दमादम मस्त कलंदर का ऐलान कर दिया। आपको याद होगा आज से 2-3 हफ्ते पहले मैंने ब्लॉग किया था। मैंने कहा ये मई का महीना तो कुछ नहीं होगा, और वाकई कुछ नहीं होगा। जैसे ही बजट आएगा उसके बाद दमादम मस्त कलंदर होगा। और आपने इसके साइंस देखना शुरू कर दिया। मौलाना फजल रहमान साहब ने कल जो प्रेसर किया रात में। इमरान खान मजीद कहते हैं शहबाज शरीफ कह रहा है कि मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। मुश्किल फैसले तब होते हैं जब लीडर कुर्बानियां खुद से शुरू करें। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और जरदारी बैरून मुल्क रखे गए अरबों रुपए वापस लेकर आए। कौम बहुत कुर्बानी दे चुकी है, अब कौम पहले आपसे कुर्बानी चाहेगी। इमरान खान अच्छा मजीद क्या कहते हैं, वो कहते हैं तमाम केसेस बराह रास्त नशर किए जाएं। दम है तो मेरे वाला केस भी लाइव दिखाओ, कौम को पता लगे चोरी किसने की। गद्दारी का भी केस चलना चाहिए तो चलाएं। फांसी के लिए भी तैयार हूं, देनी है तो दें। जजेस पर जो खौफ था वो उतर जाना चाहिए। अच्छा मजीद क्या कहते हैं, मजीद कहते हैं नवाज शरीफ ने समझ लिया कि मेरे जमीर की कीमत सिर्फ एक सड़क है। बनी गाला की सड़क तोशा खाना के ताइफ बेचकर बनवाई थी। इमरान खान ने अब इसको क्लियर कर दिया है कि नवाज शरीफ ने नहीं बनवाई, मैंने तोशा खाना के ताइफ बेचकर बनवाई थी। नवाज शरीफ और मोहसिन नकवी बताएं कि पैसा बाहर कैसे गया। इमरान खान का नवाज शरीफ को जवाब। चौधरी परवेज इलाही के मुतालिक भी इमरान खान ने तबाज़माई की। चौधरी परवेज इलाही की रिहाई पर खुश हूं, उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूं। परवेज इलाही अगर पार्टी से अलहदगी का ऐलान करें तो उसी दिन रिहा हो जाता। बस बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया, अनफ इज अनफ। पार्टी और कौम सड़कों पर एहतजाज के लिए मेरी कॉल का इंतजार करे। और उन्होंने 30 तारीख को अपने लिए कोर्ट में मैच का इंदिया दिया। उन्होंने कहा मेरा कोर्ट में मैच है और इसको लाइव नशर किया जाए जिस तरह मेरे मैचेस लाइव नशर होते थे। उन्होंने कहा मैं फांसी पर चढ़ने के लिए भी तैयार हूं, गद्दारी का केस भी चलाना है तो चलाकर देख लें। फांसी के लिए भी तैयार हूं, मुझे किसी चीज से कोई डर नहीं लगता। अगली टॉप स्टोरी शामिल करते हैं डॉक्टर मुईद पीरजादा साहब। डॉक्टर मुईद पीरजादा साहब इंतहाई आम बात करते हैं। वो कहते हैं एक तरफ खुसरों के जरिए सियासत कंट्रोल करने की कोशिश और दूसरी तरफ 40 अरब रुपया खर्च हो रहा है। डॉक्टर मुईद पीरजादा, सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए 40 अरब रुपया खर्च हो रहा है। यूट्यूब और ट्विटर या एक्स को अपनी मर्जी से चलाने के लिए आंखें खोलें तो आपको इनकी हिकमत अमली और चालाकी साफ नजर आएगी। डॉक्टर मुईद पीरजादा अब तक कम से कम 20 अरब तो खर्च कर ही चुके हैं चीनी कंपनियों के साथ मिलकर। और गौर करें किस किस के बयानियों को प्रमोट कर रहे हैं और किस किस को किस तरह से रोक रहे हैं, मगर फिर भी नाकाम हो जाएंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर मुईद पीरजादा ने अपने व्लॉग के अंदर ये बात कही है। अब जी मौलाना साहब और असद कैसर, उमर अयूब साहब और अचकजई साहब की पार्टी के लोगों का मुश्तरका जो कल मुलाकात के बाद एक एलामिया और फिर उसके बाद प्रेसर, उस प्रेसर के अंदर से क्या निकला है देखें जी। ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन थी। एक दिन पहले रऊफ हसन साहब पर कातलाना हमला हुआ है जिसको पीटीआई कातलाना हमला कर रही है। बहरहाल बहुत सीरियस घाव है उनको। और उससे अगले दिन हम्माद अजहर साहब मंजर आम पर आ जाते हैं। उससे अगले दिन हम्माद अजहर साहब ये ऐलान करते हैं कि अब तमाम लोग जो हैं वो फोर फ्रंट पर आ जाएंगे। उसी दिन प्रेशर होना भी बड़ा जरूरी था ताकि एक कलेक्टिव इम्पैक्ट जाए। प्रेशर के अंदर से कुछ नहीं निकला है, लेकिन इतना मुझे पता है कि ये प्रेशर जो है ये सही प्रेशर डेवलप करेगा आफ्टर बजट जो है वो जून के पहले हफ्ते में है। 8 तारीख को ऑलरेडी जलसा है पीटीआई का, तो दमादम मस्त कलंदर उधर से ही हो जाएगा। ये वो बात है जो मैंने आपको आज से तकरीबन कोई 3 हफ्ते पहले बताई थी कि बजट के फौरन बाद और फिर एक जलसा होगा और जलसा धरने की शक्ल इख्तियार कर सकता है। तो ये धरना 2014 वाला भूल जाएगी गवर्नमेंट, जो अब वाला धरना होगा। इमरान खान साहब जो है ना अब
बाजू अपने ऊपर कर चुके हैं, पांचे कस चुके हैं और उन्होंने तय कर लिया है कि अगला हदफ क्या होगा, अगली लड़ाई क्या होगी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हामिद मीर साहब ने एक ट्वीट कर रखा है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो ट्वीट क्या है वो मैं आपके सामने शेयर करता हूं। हामिद मीर साहब कहते हैं रऊफ हसन पर हमले के नतीजे के तौर पर दो चीजें सामने आई। नंबर एक, हम्माद अजहर मंजर आम पर आ गए। दूसरा, तहरीक इंसाफ और JUI ने आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक दूसरे से ताउन का फैसला कर लिया और मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। वही बात जो मैंने आपके सामने अभी रखी है। इमरान रियाज खान साहब ने एक ट्वीट किया हुआ है, अजहर मशवानी साहब ने पहले ट्वीट किया हुआ था, उसको कोट ट्वीट करके कहते हैं। हुआ ये है कि अता तारड़ साहब जो है वो जब बिश्केक पहुंचे हैं, आपके वजीर खजाना, वजीर खारजा और डिप्टी वजीर आजम, तो उनके साथ अता तारड़ साहब मौजूद थे, तो वो सेल्फियां और वीडियो बना रहे थे उनकी। तो उसके ऊपर अजहर मशवानी ने ट्वीट किया हुआ था। वो कहते हैं फातिहा के लिए ईरान पहुंचने वालों की भाग भाग कर वीडियोस बनाने वाला कोई टिकटॉकर नहीं, बदकिस्मती से पाकिस्तान का वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ है। फॉर्म 45 टोला पाकिस्तान को हर जगह जलील करवाने के मिशन पर है। गालिबन वो फॉर्म 47 टोला कहना चाह रहे होंगे, गलती हो गई होगी। इसके ऊपर इमरान रियाज खान कोट ट्वीट करके लिखते हैं झूठे लोग बड़े ओहदे, यानी छोटे लोग और बड़े ओहदे, इमरान रियाज खान ट्वीट करते हैं। अच्छा, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब बेहोश हुई तो उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इसके ऊपर साबिर शाकिर साहब एक ट्वीट करते हैं, वो फरमाते हैं फस्तायत ज़दा निज़ाम का शिकार एक मुअम्मर पाकिस्तानी खातून जिन्होंने सारी उम्र इंसानियत की खिदमत में गुजार दी, डॉक्टर यास्मीन राशिद अस्पताल में हैं, दुआ करें अल्लाह वतन अजीज़ पर करम फरमाए। जनाब, अब हमारा मोस्ट पॉपुलर सेगमेंट वायरल बयानात शामिल करते हैं। आपको ये ज़हन नशीन कर लेना चाहिए, आज दो बड़े फैसले आ सकते हैं, तो वो शाम वाले व्लॉग में शामिल करेंगे। पहला वायरल बयान जी, डिस्क्लेमर के साथ, कैसे कर लेते हो यार, अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माजरत, ज़्यादा बुरी लगती है तो इंतहाई माजरत। साबिर शाकिर साहब कह रहे हैं अक़वाम मुत्तहिदा का वफ्द PTI सेक्रेटेरिएट में मौजूद था और एन उसी वक्त इस्लामाबाद पुलिस ने वहां पर बगैर वारंट के धावा बोल दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक को मजीद किसी गवाही की जरूरत नहीं, क्योंकि उनके अपने सफारतकारों ने खुद ऑब्जर्व किया। तो ये बड़ी प्लानिंग के साथ हुआ होगा, हमाद अजहर साहब का रूपोशी से बाहर आना, अक़वाम मुत्तहिदा के वफ्द का आना, तो ये ऑब्जर्वेशन चली गई है इंटरनेशनली भी। ये बहुत अफसोसनाक है, लेकिन हो इधर रहा है। तो ये जो करते हैं छापे छुपे, कैसे कर लेते हो यार। आगे जी, तलाल चौधरी साहब, नवाज शरीफ लोगों के दिलों में रहता है, अगर पाकिस्तान से नवाज शरीफ और उसका नाम निकाल दिया जाए तो पीछे खंडर बचते हैं। जनाब, वो खंडरात हम CM हाउस पंजाब के अंदर देख रहे हैं, समझ रहे हैं ना बात को। एक शेर है, इमारत बता रही है खंडर अजीम, और खंडर बता रहे हैं इमारत अजीम थी। कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो। आगे जी, नदीम अफजल चंद साहब, साफी कामरान दावड़ की शहादत और रऊफ हसन जैसे नफीस आदमी पर हमले की भरपूर मजम्मत करते हैं। सवाल यह है कि हम किधर जा रहे हैं, सियासतदान खामोश क्यों हैं। ये नौहा सबका साझा है, कोई कल, कोई आज और कोई आने वाले कल में सुनेगा। लेकिन इन्हीं के दौर में, यानी ये भले कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के ऊपर बैठे हैं, हुकूमत का हिस्सा है या नहीं है, इन्हीं के दौर में तमाम तर दो नंबरियां हो रही हैं। और इन्हीं के दौर में हद तक इज्जत कानून भी पास हुआ है और एक मीडिया रेगुलेटरी बॉडी, यानी सोशल मीडिया कंट्रोल करने के लिए एक अलग इदारा सुनने में आ रहा है कि बन रहा है। अयाज अमीर साहब कैसे कर लेते हो चंद साहब। अयाज अमीर साहब, जलसे जुलूस का मौसम आया तो वो भी हो जाएंगे, लेकिन इस वक्त वो लोग वो कर रहे हैं जो कर सकते हैं। किसी महफिल में जाएं तो दंग रह जाना पड़ता है। पहले तो लोग कुछ एहतियात बरतते थे, इधर उधर देखकर बात करते थे, लेकिन अब तो यूं महसूस होता है जैसे हिजाब कोई रहा नहीं है। अयाज अमीर। अच्छा, अलीमा खान साहिबा ने इमरान खान साहब की ब्लू शर्ट को बड़ा टारगेट किया है। वो उनकी बहन है, वो फरमाती हैं इमरान खान से डिस्कस किया है कि अगली पेशी पर कौन से रंग की शर्ट पहननी है, क्योंकि ब्लू आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है। इस मरतबा रंग पहले बता देंगे ताकि लोग खरीद सके। और वाकईतन तकरीबन हर बंदा ब्लू कलर की शर्ट पहन रहा है और उसको एंजॉय भी कर रहा है। राना सनाउल्लाह साहब ने एक बात की है। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं नौबत अगर ख्वाजा सराओं तक आ गई है तो उन्हें अब सुलह कर लेनी चाहिए। वैसे ये वाली बात PTI को करनी चाहिए थी, तो आप भी अगर ये कह रहे हैं तो अब तो फिर सुलह कर ही लेनी चाहिए। राना साहब कैसे कर लेते हो जी। आजम नज़ीर तारड़ साहब, इतनी बड़ी आबादी में ये वाकयात होते रहते हैं, लेकिन हुकूमत की संजीदगी पर शक ना किया जाए। सर कोई शक नहीं है, आपकी गैर संजीदगी पर कोई शक नहीं है सर, कोई शक नहीं है। कैसे कर लेते हो यार। आगे जी, फैसल वावडा साहब के बारे में फैसल सब्जवारी कहते हैं फैसल वावडा और मुस्तफा कमाल का ताल्लुक कराची से, इनको तौहीन अदालत के नोटिस तभी जारी हुए। यार तुझसे हर चीज का रुख ना, खुदा का खौफ करो यार, कैसे कर लेते हो यार। आरिफ हमीद भट्टी साहब ने एक ट्वीट किया हुआ है, वो कहते हैं समी इब्राहिम साहब से कि भाई समी इब्राहिम, हम फकीरों को कंट्रोल करके पाकिस्तानी अवाम के हालात में बेहतरी ले आए, हर कुर्बानी हम देने के लिए तैयार हैं। उनके जो ज़बानबंदी के ऊपर समी इब्राहिम साहब ने एक ट्वीट किया हुआ था। व्लॉग से इतना ही, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।